دوستو السلام علیکم، ویلکم ہے، خیر مقدم ہے آپ کا اپنے ہی چینل ایمن اکیڈمی پر۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کی ہو، یا 1 to 5 یا 6 to 8 یا 9 to 10، کسی کی آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، سبھی کی یہ کلاسز سبھی کے لیے، سبھی دوستوں کے لیے یہ کلاسز بہت ہی اہم ہیں۔ اس لیے آپ کیا کریں گے، لاسٹ تک بنے رہیے گا، کلاس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر اسکپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ہم پڑھیں گے آج کس کو دوستو، ہم پڑھیں گے الطاف حسین حالی کو۔ کس کو پڑھیں گے؟ الطاف حسین حالی کی حیات و خدمات کو پڑھیں گے اچھے سے، پوری ڈیٹیل سے اس کے بارے میں جو ساری چیزیں ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو ہم الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھ لیے تو اس سے ریلیٹڈ کہیں سے بھی کوئی سوال آئے گا تو آپ کا انشاءاللہ کوئی بھی سوال آپ سے نہیں چھوٹے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کے پہلے لائن کو۔ حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ سوال آپ سے پوچھے گا کہ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے، تو کیا بولیں گے؟ الطاف حسین حالی کو۔ کس کو؟ الطاف حسین حالی کو دوستو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ چلیے دوسری لائن کو تو دیکھتے ہیں۔ نام کیا تھا اس کا؟ الطاف حسین حالی تھا، اور تخلص پہلے خستہ کرتے تھے۔ پہلے تخلص کیا کرتے تھے؟ خستہ، پھر حالی۔ یاد رکھیے گا کہ الطاف حسین حالی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ خستہ۔ اس کے بعد کیا تخلص کرنے کے لگے؟ حالی۔ یاد رکھیں گے۔ حالی پانی پت ضلع کرنال پنجاب میں 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال آپ سے پوچھ دے گا کہ حالی کب پیدا ہوئے، تو کیا بولیں گے دوستو؟ حالی جو ہے 1837 عیسوی میں پانی پت ضلع کرنال پنجاب میں 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کون سے ضلع میں؟ کیا بولیں گے؟ کون سے ضلع میں بولیں گے ہم؟ پانی پت ضلع پانی پت، اور جو ہے جگہ کا نام کیا تھا؟ کرنال۔ یہ کہاں پڑتا ہے؟ پنجاب میں۔ اور کون سے عیسوی میں؟ 1837 عیسوی میں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حالی کا انتقال دوستو 31 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں انتقال ہوا۔ پیدا کہاں؟ پانی پت میں۔ کب؟ 1837 عیسوی۔ انتقال کب؟ 31 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت میں انتقال ہوا۔ چلیے اتنی ساری چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ حالی کے والد کا نام کیا تھا؟ حالی کے والد کا نام خواجہ ایز بخش تھا، اور بڑے بھائی کا خواجہ امداد حسین مظہر تھا۔ حالی کے والد کا نام خواجہ ایز بخش تھا، اور بڑے بھائی کا نام خواجہ امداد حسین مظہر تھا۔ حالی کے مورث اعلیٰ پیر حضرات شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہیں۔ انہی کی نسبت سے خواجہ الطاف حسین حالی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ ان کے مورث اعلیٰ کون ہے؟ پیر حضرات شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ یاد رکھیے گا، ان کے کون ہے؟ یہ مورث اعلیٰ ہیں، یعنی اسی کے خاندان میں سے ہے۔ کون؟ الطاف حسین حالی۔ انہی کی نسبت سے الطاف حسین حالی کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلی لائن کو دیکھیں گے دوستو۔ اگلی لائن میں ہے حالی کی شادی ان کے ماموں میر باقر علی کی لڑکی اسلام النساء سے حالی کی مرضی کے خلاف 1854 میں 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حالی کے دو بیٹے خواجہ اخلاق حسین اور خواجہ حسین تھے، اور ایک بیٹی عنایت فاطمہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ حالی کا سلسلہ حضرت ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کا؟ حالی کا سلسلہ نسب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا ان ساری چیزوں کو۔ سارے لائن سے بی آئی ہیں، کسی بھی لائن کو آپ مس مت کیجیے گا، تاکہ آپ کے آنے والے کسی بھی ایگزام میں آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیے حالی کی درسی اساتذہ قاری ممتاز علی اور سید جعفر علی اور مولوی ابراہیم انصاری، مولوی نوازش علی، یہ کون ہے؟ حالی کے استاذ محترم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں گے حالی نے شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا، مگر غالب کے مشورے پر تخلص بدل کر حالی بروزن غالب کر دیا، یعنی حالی بروزن غالب کے حالی کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ مالک رام کا خیال ہے کہ حالی نے اپنا تخلص شیفتہ کی صحبت کی وجہ سے تبدیل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ حالی 1855 عیسوی میں غالب سے مل کر ان کو اپنا فارسی شعر سنایا۔ آپ نے حالی کو شاعری شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ کس نے؟ مرزا غالب نے۔
कब सुनाया था मिर्जा गालिब ने आपको शेर अपना? 1855 ईस्वी में। कौन सा शेर सुनाया था? फारसी शेर सुनाया था। ठीक है ना। किसको सुनाया था? मिर्जा गालिब को। कौन से ईस्वी में? 1855 ईस्वी में। तो मशवरा आपको किसने दिया शेर व शायरी करने का? तो मिर्जा गालिब ने दिया कि आप शेर व शायरी शुरू कीजिए। किसको? अल्ताफ हुसैन हाली को। ठीक है, 1855 ईस्वी में। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। कर्नल हॉलराइट की सिफारिश पर, किसके? कर्नल हॉलराइट की सिफारिश पर जून 1904 ईस्वी में हिंदुस्तान के वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने अली को शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा। ठीक है। हैदराबाद के नवाब सरे आसमा जाह ने 1887 ईस्वी में सर सैयद की सिफारिश पर 75 रुपए माहाना वजीफा हाली के लिए मुकर्रर किया। किसकी सिफारिश पर? सर सैयद अहमद खां की सिफारिश पर। कौन से ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। सरे आसमा नवाब सरे आसमा ने, कौन थे ये? हैदराबाद के नवाब थे। इसने 75 रुपए माहाना वजीफा किसके लिए जारी किया था? अल्ताफ हुसैन हाली के लिए जारी किया था। किसके कहने पर? सर सैयद अहमद खां के। इन सारी चीजों को जहन में बैठा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त उर्दू के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर ये चैनल लाइक बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम इस तरह से और भी बेहतर वीडियोस आपके लिए हम लेकर आ सके। ठीक है। देखिए, मसूद हुसैन रिजवी के अलावा मौलाना हसरत मोहानी अब्दुल रहमान भी हाली के ख्यालात से इख्तिलाफ किया है। हाली ने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया है। सवाल आपसे पूछेगा दोस्तों कि नेचुरल शायरी का नजरिया किसने पेश किया? तो आप क्या कहेंगे? नेचुरल शायरी का नजरिया जो है हाली ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने पेश किया। ठीक है ना। मसूद हुसैन रिजवी के अलावा मौलाना हसरत मोहानी अब्दुल रहमान ने भी हाली के ख्याल से इख्तिलाफ किया। सवाल आएगा, आपके ख्यालात से इख्तिलाफ किनको था? मसूद हुसैन रिजवी को, मौलाना हसरत मोहानी को, अब्दुल रहमान को। ठीक है ना। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। हाल ही के यहाँ सर सैयद और शेफ्ता का असर ज्यादा नुमाया है। हाली उर्दू के पहले सवानह निगार हैं। हयात सादी 1882 ईस्वी में पहली सवानही तसानीफ है। किसकी? तसानीफ नहीं लिखेंगे या तसनीफ लिखेंगे। ठीक है ना। किसकी तसनीफ है ये पहली तसनीफ? तो हाली की है। कौन सी तसनीफ? जो हयात सादी कौन सी ईस्वी में लिखी गई? 1882 ईस्वी में। याद रखिएगा। अब देखेंगे हाली के कारनामे। ये तो हाली के बारे में हम मुख्तसर सी जानकारी जो थी उनको हम दे लिए। अब हम हाली के कारनामे के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन से रिसाले लिखे, आपने कितने मसनवी, कितने कसीदे और कितने जो है कितनी सारी चीजें, कौन कौन से असनाफ में आपने तबा आजमाई की, उन सारी चीजों को दोस्तों हम देखते हैं आगे। हाल ही के कारनामे। रिसाला मंतिक 1854 ईस्वी में ये हाली ने लिखा। रिसाला मंतिक। मौलूद शरीफ, तिरियाके मसमूम, शवाहिदुल इल्हाम, उसूल फारसी, इल्म तबकातुल अमराज, ये किनकी तसानीफ है? तो क्या बोलेंगे? अल्ताफ हुसैन हाली की ये सारी तसानीफ अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मजालिसुन निसा, ये भी हाली की मशहूर तसनीफ है। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। 1874 ईस्वी में मजालिसुन निसा किताब को लिखी गई। ये किताब लाहौर में मिडिल जमात की तलबा के लिए लिखी गई थी। ये इस्लाही और अखलाकियात की किताब है। इसे नाविल भी कहा गया है। किसको? मजालिसुन निसा को नाविल भी कहा गया है। ये किताब जो है मिडिल जमात की तालिबात के लिए लिखी गई थी। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। मुसद्दस मद्दोजर इस्लाम, ये किनकी किताब है? तो क्या बोलेंगे? मुसद्दस हाली की है। कौन सी ईस्वी में लिखी गई? 1879 ईस्वी में। मुसद्दस मद्दोजर इस्लाम मुसलमानों के उरूज जवाल की दास्तां है। इसमें क्या लिखा गया? मुसद्दस मद्दोजर इस्लाम में ये इसके अंदर जो है मुसलमानों के उरूज जवाल की दास्तां बयान की गई है। ठीक है ना। कौन सी ईस्वी में लिखी गई? 1869 में। 1879 ईस्वी में किसकी लिखी हुई है? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है। चलिए इतनी चीजें समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसको हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखा। किसको? मुसद्दस
मद्दोजर इस्लाम को, मुसद्दस मद्दोजर जरद इस्लाम, मद्दोजर इस्लाम को, इसको किसके फरमाइश पर लिखा आपने? जो है सर सैयद की फरमाइश पर। आप उनके बारे में कहते थे, खुदा जब क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो, तो मैं कहूंगा हाली से मुसद्दस लिखवाया हूं और कुछ नहीं। ये कौन कहते थे? सर सैयद अहमद खां कहते थे। इन्हीं की फरमाइश पर आपने अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या लिखा था? मुसद्दस हाली, जिसको कहते हैं मुसद्दस हाली, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है। पूरा नाम क्या है? मुसद्दस मद्दोजर इस्लाम इसका पूरा नाम हुआ, और शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या हो गया? मुसद्दस हाली। तो ये किसके कहने पर आपने लिखा था? तो सर सैयद अहमद खां के कहने पर इस किताब को आपने लिखी थी। कौन? अल्ताफ हुसैन हाली ने, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खां क्या फरमाते हैं कि जब कल क़यामत के दिन खुदा मुझसे पूछेगा कि तुम क्या लेकर के आए हो दुनिया से, तो मैं कहूंगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा के लाया हूं, मुसद्दस मद्दोजर इस्लाम लिखवा के लाया हूं। तो यही देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अहम किताब है ये अल्ताफ हुसैन हाली की, जिसके बारे में जो है अल्ताफ सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि कल क़यामत के दिन खुदा जब मुझसे पूछेगा कि तुम क्या लेकर के आए हो, तो मैं कहूंगा कि खुदा से मैं अल्ताफ हुसैन हाली से मद्दोजर इस्लाम लिखवाया था, यही सिर्फ लेकर आया हूं और कुछ नहीं लेकर आया हूं। शवाहिदुल इल्हाम ये भी आपकी किताब है, उसूल फारसी आपकी किताब है, इल्म तबकातुल अर्ज ये किनकी किताब है? ये सारी किताबें अल्ताफ हुसैन हाली की हैं दोस्तों, ठीक है ना, अल्ताफ हुसैन हाली की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या है। सवाने हकीम नासिर खुसरू, ये सवाने उमरी हाली ने फारसी में लिखी है। सवाने हकीम नासिर खुसरू, सवाने उमरी है, इसको हाली ने अल्ताफ हुसैन हाली ने फारसी में लिखी है। मजामीन हाली 32 मजामीन लिखे हैं। जो मजामीन हाली जो है इसके अंदर 32 मजामीन हाली ने लिखे हैं, ये मजामीन का मजमुआ है, ठीक है। हयात सादी हाली की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका क्या नाम है? हयात सादी, ठीक है ना। यादगारे गालिब 1897 ईस्वी में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। देखिए यादगारे गालिब 1897 ईस्वी में लिखी गई। कब? 1897 ईस्वी में। ये आपके इंतकाल का साल है। किनके इंतकाल का साल है? ये मिर्जा गालिब के इंतकाल का साल है। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 में पैदाइश हुई। 1869 में इसका इंतकाल हुआ था। सॉरी, ये इंतकाल का साल है, 1869 में इंतकाल हुआ, 1797 मिर्जा गालिब पैदा हुए, और 1897 में आपके ऊपर आपने एक यादगारे गालिब के नाम से, आपके नाम से सवाने लिखी। लिखने वाले कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्सा में मिर्जा की जिंदगी के वाकयात, यानी पहले हिस्से में जो है अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब की जिंदगी के वाकयात बयान किए, और दूसरे हिस्से में गालिब के तमाम कलाम को पेश किया है। कौन? अल्ताफ हुसैन हाली ने, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी 3 मशहूर किताब है। कौन? हयात सादी ये अल्ताफ हुसैन हाली की है, ये भी सवाने उमरी है, और उसके बाद यादगारे गालिब ये भी सवाने उमरी है। और इससे पहले आपने पढ़ा, अभी क्या पढ़े? एक अल्ताफ हुसैन हाली की कौन सी किताब पढ़े थे जो सवाने उमरी है? अल्ताफ हुसैन, एक हयात सादी, ठीक है, हयात सादी हो गया, यादगारे हो गया, और एक है आपको हयात जावेद। ये देखिए ये आगे है हयात जावेद। ये 3 आपकी सवाने मशहूर सवाने उमरी है, ठीक है ना। यादगारे गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा कि अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ की है, मगर वो उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फेल पर बहुत नादिम थे। ये किसने कहा? ये अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं। किनके बारे में? मिर्जा गालिब के बारे में, कि ये आप शराब की बहुत तारीफ की, शराब की हर शेर में अपने तारीफ की, लेकिन वो जाती तौर पर उसको बुरा जानते थे और अपने फेल पर आप नादिम भी थी। कौन? मिर्जा गालिब, ठीक है। हयात जावेद ये किसके बारे में लिखा गया? ये सवाने उमरी किसके बारे में है? सर सैयद अहमद खां के बारे में आपने लिखी है। सर सैयद अहमद खां के बारे में लिखने वाले कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। तो ठीक है, ये 3 सवाने उमरी मशहूर है। कौन कौन सी? एक यादगारे गालिब किसकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की है। एक जो है आपको हो गया हयात सादी
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, और तीसरा जो है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो है ये हयात जावेद। ये 1901 ईस्वी में सर सैयद की सवाने उमरी लिखी है। क्यों, कौन लिखने वाले? अल्ताफ हुसैन। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं, विलादत से लेकर उनफान शबाब पर, और दूसरे हिस्से में उनकी जिंदगी और उनकी तसनीफात और उनके कामों पर मुश्तमिल है। किनके? सर सैयद अहमद खां के बारे में। ठीक है ना। मकालात हाली दोस्तों जानेंगे। मकालात हाली ये 1952 में लिखी गई। हाली के छोटे फर्जिंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने हाली के मकालात को 2 जिल्दों में जमा किया। कितने जिल्दों में? 2 जिल्दों में जमा किया। मजमुआ मजमुआ नज़्म हाली चंद मुतफर्रिकात का मजमुआ है। उसके शुरू में हाली का दिबाचा है, उसमें 15 नज़्में हैं। दीवान मुकदमा शेर व शायरी 1893। देखिए दीवान कौन सा? मुकदमा शेर व शायरी। ये बहुत मशहूर किताब है अल्ताफ हुसैन हाली की, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है ना। ये कौन सी ईस्वी में आप लिखे? इसको जो है आप 1893 में ईस्वी में लिखे। इस दीवान में हाली की उर्दू गजलियात, कसाइद और कते तरकीब बंद और रुबाइयात हैं। इस दीवान में हाली के बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर के कते तारीख भी लिखे हैं। इसमें 123 गजलें और पौने 300 अशार हैं। किसके अंदर? मुकदमे शेर व शायरी के अंदर। ठीक है ना। कुल्लियात हाली 1914 ईस्वी के अंदर लिखी गई। ये नज्म नस्र फारसी और अरबी का मजमुआ है। ये नज्म नस्र क्या है? फारसी और अरबी का मजमुआ है। मकतूबात हाली देखेंगे दोस्तों। हाली के मकतूबात को उनके छोटे फर्जिंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने मुरतब किया है, जिस पर मौलवी अब्दुल हक का मुकदमा है। ठीक है ना, मुकदमा है। ठीक है। इंतखाब कलाम दाग, मिर्जा दाग दहलवी के कलाम का इंतखाब है। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे के लिए हाली ने 4 नज़में लिखी है। वो कौन कौन सी नज़में दोस्तों, उसको भी देख लेंगे। क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो लाइक करते जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह के जो भी वीडियोस अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम देखेंगे क्या है। ये 4 नज़में जो आपने लिखी हैं, एक है बरखारत, इसमें 145 अशार है। दूसरा है निशात उम्मीद, जो 1874 में इस नज़्मे को आपने लिखी, इसमें 92 अशार है। उब्बे वतन, जो 1874 में आपने लिखी, इसमें 215 अशार हैं। ठीक है ना। मुनाजिर रहम इंसाफ, ये भी अल्ताफ हुसैन हाली की 1875 में लिखी हुई किताब है। इसमें 119 अशार है। ठीक है ना। हाली की दूसरी नज़्म अक्लो नफ्स की गुफ्तगू, कौम की पासदारी, दौलत और कुव्वत का मुनाजरा, हुकूक औलाद, ये आपकी दूसरी नज़्म है। ठीक है ना, अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है। हाली की मुरासी को जानेंगे दोस्तों। मुरासी यानी मरसिया की जमा है मुरासी, मरसिया की जमा मुरासी। तो ये जानेंगे मुरासी। हाली के मुरासी कौन कौन से? हाली के मुरासी, हाली ने कुल 5 शख्सी मरसिये लिखे हैं। मरसिये गालिब 1869 में जो तरकीब बंद है। बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया 1885 से 86 के दरमियान आपने ये मरसिया लिखे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मरसिया हकीम महमूद जा 1892 में जो मुसद्दस की हैयत में है उसके आपने लिखा। ठीक है ना। मलके विक्टोरिया का मरसिया 1901 में जो तरकीब बंद है उसको आपने लिखा। नवाब मोहसिनुल मुल्क का मरसिया 1907 ईस्वी में आपने लिखा। हाली के कसायद, हाली के कलाम में 7 मुकम्मल और 3 नामुकम्मल कसायद, यानी कुल 10 कसायद हैं। मुकम्मल कसायद में 2 नात हैं। ठीक है ना। 3 नवाब सरे आसमां, एक 3 के कसायद इनके बारे में, और मलके विक्टोरिया 3 इनके बारे में, और निजाम दक्कन की तारीफ में आपने कसायद लिखे। ठीक है। तीसरे कसीदे में देखिए, तीसरे कसीदे में सिर्फ तस्बीब के चंद अशार हैं। इसके अलावा हाली के कलाम में 4 नज़्में हैं। मुकदमे शेर व शायरी, ये पहली बार 1993 ईस्वी में शाये हुआ। मुकद्दिमा के सरे वर्क पर एक अरबी कौल, दर मउद्दहर कमादार, दर मउद्दहर कमादार, जिसका मफहूम है जिधर जमाना फिरे तुम भी उधर फिर जाओ। ये किसके मुकद्दमा में लिखा हुआ है? तो अल्ताफ हुसैन हाली के मुकद्दमा में। कौन से मुकद्दमा में? तो ये मुकद्दमा है शेर व शायरी मुकद्दमा में। क्या लिखा हुआ? वो अरबी कौल, दर मउद्दहर कमादार, दर मउद्दहर कमादार।
यानी जिधर जमाना फिरे तुम भी उधर फिर जाओ। ये मुकदमा शेर व शायरी मुकदमा इब्ने खुल्दूम के तर्ज पर है। ये मुकदमे शेर व शायरी किसके तर्ज पर है? मुकदमा इब्ने खुल्दूम के तर्ज पर है। हालांकि यहाँ मुबालगा से खाली होना शेफ्ता का असर और नेचुरल शायरी सर सैयद का असर है। ठीक है ना। मुकदमा शेर व शायरी के रद में मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी लिखी है। हाल ही ने अपने मुकदमे शेर व शायरी में मुंदरजा झेल शोरा का तस्करा किया है। कौन कौन? विलियम शेक्सपियर, गोल्ड स्मिथ, सर वाटर स्कॉट, मिल्टन, बायरन, लॉर्ड मेकाले, इन सारे शायरों का तस्करा आपने किसमें किया है? मुकदमे शेर व शायरी के अंदर किया है। ठीक है ना दोस्तों। देखेंगे हाल ही ने मुंदरजा झेल मशरिकी मुफक्किरीन का हवाला अपने मुकदमा शेर व शायरी में दिया है। इब्ने रशीद, इब्ने खुल्दून, असमई, खलील बसरिया बिन अब्दुर्रब्बा। ठीक है ना। मुकदमे शेर व शायरी दो हिस्सों में मुनकसिम है। पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए हैं, दूसरे हिस्से में अमली तनकीद है। ये सारी चीजों को याद रखिएगा, सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप इस नंबर पे 87 57 68 90 45 इस पर व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। हाली तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुसे अल्फाज को शायरी के लिए लाजमी करार देते हैं। हाली सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी ठहराते हैं। हाली ने मसनवी को सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ करार दिया है। हाली ने गजल को इश्क व आशिकी के दायरे में कैद किया है। हाली को कसीदा झूठ और खुशामत से लबरेज नजर आता है। हाली को कसीदा क्या? झूठ और खुशामत से लबरेज नजर आता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखिएगा। हाली के मुताबिक मरसिया के जरिया अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है किसके जरिया? मरसिया के जरिया। हाली वजन और काफिये को शेर के लिए जरूरी नहीं समझते हैं। वजन और काफिये को शेर के लिए कौन जरूरी नहीं समझते हैं? तो क्या बोलेंगे? अल्ताफ हुसैन हाली दोस्तों। ठीक है ना। उर्दू तनकीद की तारीख में मुकदमे शेर व शायरी को बोथिका की तरह अहमियत हासिल है। ठीक है। हाली के मुताबिक शेर की मदोजम में बहुत कुछ कहा गया है। जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वह बनिस्बत मदह के ज्यादा करीने कयास है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। मुकदमे शेर व शायरी के आराव ख्यालात, मुकदमे शेर व शायरी के आराव ख्याल, आज लिखने वालों का नजर हाली की तरह महदूद नहीं है। ठीक है। यानी हाली के बारे में किसने क्या क्या है वो कहा है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। वह बेहतरीन मगरिबी अदीब और तनकीद से वाकफियत रखते थे। कौन? अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है। इसके बावजूद किसी ने भी मुकदमे शेर व शायरी से बेहतर तनकीद कारनामा पेश नहीं किया। किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। मौलवी अब्दुल हक ने मुकदमे शेर व शायरी को पहला नमूना कहा है। प्रोफेसर आल अहमद सुरूर ने मुकदमे शेर व शायरी को उर्दू शायरी के पहले मंशूर का नाम दिया है। मुकदमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप हैं। अबुल सिद्दीकी का कहना हुआ। दीवाने हाली का मुकदमे फन शायरी और उर्दू शायरी पर जबान उर्दू अदब में सबसे आला पाया की तनकीद है। किसने कहा? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा दोस्तों। ठीक है। ये सारी चीजें हाली हमारी शायरी की उर्दू तनकीद के मुज्तहिदीन है। किसने कहा? शौकत सब्जारवी ने कहा। ये सिर्फ उनके दीवान का मुकदमा नहीं बल्कि उर्दू फन तनकीद का पहला मुकदमा है। मौलवी अब्दुल हक ने कहा। हाली सिर्फ उर्दू तनकीद के बानी नहीं बल्कि इस वक्त के उर्दू के बेहतरीन नक्काद भी है। ये किसने कहा? ये सारी चीजें मौलवी अब्दुल हक ने कहा। ठीक है ना। देख लेंगे हाली के मुतालिक आराओ ख्यालात। गालिब ने अपने खत में हाली के मुतालिक लिखा था, ये तर्ज खास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानी पत्ती अंसारियों के महल्ले में रहने वाला लूट गया। किसने कहा था? गालिब ने कहा था। किसके बारे में? अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। हाली को गजलों में सेहतमंद अदबी शूर है। किसने कहा? आला अहमद सुरूर ने कहा। मजनू गोरखपुरी ने हाली की गजलों को दिल की बातें कहा है। मजनू गोरखपुरी ने कहा कि हाली की गजलें जो है दिल की बातें हैं। ठीक है ना। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है। किसका कहना है? ये राम बाबू सक्सेना का कहना है। इस तरह से आपको दे देगा और पूछ लेगा दोस्तों। मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू शायरी के उफक पर तुलू हुआ। ये किसने कहा? राम बाबू सक्सेना ने कहा। याद रखिएगा दोस्तों।
کلام حالی میں کلام سعدی والی عکاسی پائی جاتی ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ فراق گورکھپوری کا کہنا ہے. سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے. کن کا کہنا ہے؟ فراق گورکھپوری کا. حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے. خورشید الاسلام کا کہنا ہے. مجموع گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے. کس نے؟ مجموع گورکھپوری نے. مسدس مدظہر اسلام کو سر سید نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے. یہ ساری چیزیں دوستو الطاف حسین حالی کی بارے میں تھی جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کلاسز اچھی لگی دوستو تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے. آپ کے موبائل میں جتنے گروپ ہیں سب میں شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی بہتر سے بہتر کلاسز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. اگر یہ PDF چاہیے دوستو تو اس نمبر پہ 8757689045 پر میسج کر کے یہ PDF آپ فری میں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے لیے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا. دوستو تو آج کی کلاس یہیں تک، پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلے کلاس میں. آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس طرح کے کلاسز چاہیے آپ کو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کلاس یہیں تک، پھر ملتے ہیں دوستو ہم اگلے کلاس میں.